आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम बी सत्यनारायण ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साल 2021 और 22 के सालाना इम्तिहानात के नताज का ऐलान कर दिया। बोस सत्यनारायण ने बताया कि रियासत के जुमला 8 लाख से ज्यादा तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा की कामयाबी का तनासब 54% और साल दुवम के तलबा की कामयाबी का फीसद 61 है। लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मारी है। नताज में जिला कृष्णा को पहला मकाम, गुंटूर को दूसरा और नेल्लूर को तीसरा मकाम हासिल हुआ। कड़पा को आखिरी मकाम हासिल हुआ है। 25 जून से 5 जुलाई तक रिकाउंटिंग के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है। 3 अगस्त से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात होंगे। 6 से 25 मई तक इम्तिहानात मुनक्किद किए गए थे। 28 दिन में नताज का ऐलान कर दिया गया। एपी वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी से डीएससी 1998 के उम्मीदवारों ने मुलाकात की। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलाजमत नहीं मिलने वालों को मुलाजमत फराहम करने की हिदायत पर उम्मीदवारों ने इजहार तशक्कुर किया। 24 साल पुराना मामले को हल करने पर सीएम से इजहार तशक्कुर किया गया। सीएम कैंप ऑफिस में वज़ीर आला को तहनीत भी पेश की गई। तलबा तंजीम ने एसआरआर सीवीआर गवर्नमेंट कॉलेज में को एजुकेशन तालीम का सिलसिला जारी रखने की मांग की। उन्होंने कॉलेज को लड़कियों के लिए मुख्तस करने के जियो को वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों ने हुकूमत पर एक तरफा फैसला करने का इल्जाम लगाया। लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज कायम करने की मांग की। కళాశాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా జూనియర్ కళాశాలగా మార్చడం ద్వారా పేద విద్యార్థులకు విద్య దూరం అవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ విద్యార్థులు కళాశాలలో చదువుకుంటా ఉన్నారు. ఎక్కువ భాగం కూడా బాయ్స్ ఎక్కువ అడ్మిషన్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కళాశాలనే ఈ రకంగా జియోల పేరుతో దీన్ని మహిళా కళాశాలగా మార్చడం అనేది సరైనది కాదు. మేము ఎస్ఎఫ్ఐగా ఒకటే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ఎస్ఆర్ఆర్ అండ్ సివిఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలనే కో ఎడ్యుకేషన్ కళాశాలగా కొనసాగించాలి. దాంతో పాటుగానే విజయవాడ నగరంలో మరొక బాలికల జూనియర్ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అర్థం చేసుకోకుండా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకోకుండా ఏకపక్షంగా జీవోలు విడుదల చేయడం అనేది ఇది సరైనది కాదు. మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. అందుకనే ఈ రోజు నిన్న కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని కూడా కలిసాం. ఈ జీవోలు కనుక ఉపసంహరించుకోకపోతే దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరించాం. विजयवाड़ा के एमबी के भवन में अग्निपथ स्कीम पर इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में सीपीएम रुकन पार्लियामेंट विनय विश्वमू ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के बेरोजगार नौजवानों के मसले का हल नहीं है। उन्होंने नौजवानों को धोखा देने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया। हुकूमत पर आरएसएस के एजेंडे पर अमल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने अग्निपथ के नुकसानात से आवाम को वाकिफ कराने के लिए मुल्क भर में मुहिम चलाने का भी ऐलान किया। The RSS controlled BJP is trying to play yet another treachery on this country and its people. Agnipath is going to solve the problem of unemployment. The country will not believe it. It is going to plunder the Indian youth by paying them a paltry salary. Salary will be very less, and those agniveers will be thrown out after 4 years. In fact, this move of the BJP RSS is a step towards militarization, and this ideology of militarization is borrowed by the BJP RSS from Hitler's fascist Germany. One more time, India is witnessing that RSS and BJP, in the name of Bharat Mata and Atmanirbhar for Bharat, they are trying to copy down the policies, the programs, the politics and the ideology of the Hitler fascism, and the people of this country are not going to yield before them. The youth of the country have declared a war against this treacherous BJP government, and we, the left, will strongly support their struggles, and in our own way, along with the people of this country, we, the communist parties, will try to mobilize the masses.
सीपीएम की जानिब से एहतजाज किया गया है। एहतजाजों ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से SC/ST को साबिक की तरह माहाना 200 यूनिट बिजली देने की मांग की। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए अहकामात को वापस लेने का मुतालबा किया गया। बाबू राव ने इंतखाबी वादे को पूरा करने की मांग की। So on behalf of CPIM, we are demanding withdraw new conditionalities and continue the free power to the SC/ST sections. Now in so many towns and mandal headquarters, the agitations are going on. We will take up a statewide agitation. It is government is acting against the SC/ST and MBC sections. So we are demanding government withdrawal of their orders regarding the SC/ST people. शाही जामा मस्जिद अदूनी में इस्लाह मुआशरा अक़ीदा आज़म का कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद शमशाद अहमद मिसबाही, मोहम्मद सलमान रजा रहे। जलसे की सदारत मौलाना सैयद शाह हुसैनी पीर रिजवी ने की। मुफ्ती मौलाना सैयद यूसुफ हादी, सैयद शाह हबीबुल्लाह कादरी, सैयद शाह नवेद तेग बरहाना इस्लाह मुआशरा पर खिताब किया। भी छुपा हो तो ये हक़ातिल नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि नबी का कानून। आप ये बात कर रहे हैं तो अगर याद है तो मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा कहने वाले शरफुद्दीन बुसीरी याद है। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु आइनी कहने वाले हस्सान बिन साबित याद है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा ही रहेंगे। 100 साल गुजर गए, गुस्ताख तो किसी को याद नहीं, इमाम अहमद रजा सबको याद है। इमाम इश्क व मोहब्बत सबको याद है। भोंकने वाले भोंकते रहो, हम तो कहेंगे आका की बारगाह में सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आंध्र प्रदेश मशाक वेलफेयर एसोसिएशन के वफद ने कर्नाटक का दौरा किया। तंजीम के सदर व अरकान ने गुलबर्गा में दरगाह हजरत शेख रोजा के सज्जादा नशीन से मुलाकात की और मशाक वेलफेयर के काम से वाकिफ करवाया। उन्होंने कर्नाटक में भी मशाक वेलफेयर एसोसिएशन तश्कील देने का ऐलान किया। महफिल में जो 24 घंटे दूध की महफिल मनाई जाती है, ये वाहिद सुनने में आया कि सारे हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसा एक गुजरा है जहाँ पे 24 घंटे दूध शरीफ का विर्द होते रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं कि नबी का नाम लेता हूँ सुकून क़ल्ब मिलता है, नबी के इस दीवाने को नबी का नाम काफ़ी है। इसी दरूद की महफिल इसी हुजरे से अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर्नाटका के अंदर मशाइखीन की कमेटियाँ बनाने का एक काम शुरू किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उम्मीद रखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला के काम की तरफ से कामयाबी होगी और हज़रत जी ने भी हमारे इस एसोसिएशन के लिए दुआ फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मशाइखीन और तमाम मुरीदीन और मुसलमानों के लिए बेहतरीन काम है। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाना आंध्रा से होता हुआ आज कर्नाटका पे आए हैं, गुलबर्गा से शुरू किए। इंशाअल्लाह इनकी दुआ से सारे कर्नाटका में काम जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव ने करनूल गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में जनरेटर की बैटरी फटने का जायजा लिया। अस्पताल इंतजामिया से तफसील हासिल की। बिजली नहीं होने से मैटरनिटी वार्ड में मरीज को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि रायलसीमा अजला के साथ साथ तेलंगाना और कर्नाटक के लोग भी करनूल अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। मरीजों को सहूलत पहुंचाने पर जोर दिया गया। ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనకే గ్యారెంటీ లేదు, మెషిన్స్ వాటన్నిటికీ ఇవన్నీ కొంచెం వేర్ అండ్ టేర్ ఉంటుంది. వాటిని రెగ్యులర్గా ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ పవర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కడ ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటిని దాంట్లో భాగంగానే ఈ చిన్న చిన్న సంఘటనలు ఏమవుతున్నాయి అలాంటివి ఏమీ జరగకుండా ఎక్కడైనా జరిగే అవకాశం ఉంటే వాటిని ముందుగానే మనము గమనించుకొని వాటిని ఎట్లా అడ్రస్ చేసుకోవాలనేది పాయింట్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, రేపు హెచ్డిసికి జరిగేటప్పుడు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు మమ్మల్ని
మా మీద చాలా బాధ్యత పెట్టున్నారు. హాస్పిటల్ విషయంలో ప్రతిదాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలనేది ఆ కమిటీలో డిస్కస్ చేసింది. దాని నుంచి కూడా మన కర్నూలు జనరల్ హాస్పిటల్కి వస్తారు. ఇటు మనకు బార్డర్లో కర్ణాటక నుంచి కానీ, ఇటు పక్కన ఉన్న తెలంగాణ నుంచి కానీ, మనకు అనంతపురం నుంచి, కడప నుంచి, ఇంకా రకరకాల ప్రదేశాల నుంచి కర్నూలు జనరల్ హాస్పిటల్కి వస్తారు. ఈ హాస్పిటల్కి అంత మంచి పేరుంది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నదాన్ని. ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు జరిగే చిన్నవి అది జనరల్గా మనం దేంట్లోనైనా ఒక చిన్నవి ఉంటాయి, బట్ అవి కూడా జరగకుండా అట్లా చూసుకోవాలి. దీన్ని మనం ఈ ఏరియాలో ఎవరి కష్టం వచ్చినా తెలుసుకునే ఈ హాస్పిటల్కి వేరేది ఏమి జరగకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने आत्माकुर ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया. उन्होंने आत्माकुर में रोड शो में हिस्सा लिया. वाईएसआरसीपी उम्मीदवार विक्रम रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की राय दहिंदों से अपील की. अमजद बाशा ने कहा कि मरहूम अनिल कुमार यादव के खानदान ने आत्माकुर हल्के की तरक्की के लिए बहुत काम किया है. तमाम आत्माकुर के राय दहिंदे एम विक्रम को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की उन्होंने अपील की. आंध्र प्रदेश के जिला सीतारामराजू के एजेंसी इलाके में भारी बारिश से कई दरख्त उखड़ गए. सड़कों पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक जाम देखा गया. सड़क खुलने का गाड़ियों ने बहुत देर तक इंतजार किया. जद्दोजहद के बाद सड़क पर ट्रैफिक निजाम बहाल करने की कोशिश की गई. विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम के मजाफाती इलाके में हालिया दिनों मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने पर अकीदतमंदों ने नाराजगी का इजहार किया है. मजहबी लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी आरएसएस के कारकुनों ने एहतजाज किया. एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया. रियासत में ईसाइयत को फरोग देने और हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया. उन्होंने रियासत में मूर्तियों की तोड़फोड़ के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया. उन्होंने हुकूमत से मुजरिमों को सजा देने और पुलिस गश्त में इजाफा करने की मांग की. जिला तमिलनाडु के विंदेवी गांव में सतनापल्ली मंडल में एक खातून पर सरेआम हमले का वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि बाबाई कोटैया नामी शख्स अपनी बेटी कोटम्मा पर जायदाद के तनाजे पर चाकू से हमला कर दिया. कोटम्मा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. सच